What are the pros and cons of being a poet or a storyteller right now? I think everything that we say as a pro can also become a con. Very honestly. Right. How do you convince your parents कि हमको ये वाले जॉब में जाना है? Because it is India and it's an unconventional job or it's an unconventional art form जहाँ पे पैसे का कुछ भी है नहीं ना, जॉब सिक्योरिटी से कुछ नहीं है. So how do you convince them? So मेरे पेरेंट्स जब मैंने पहली 2 नौकरी छोड़ी उसके बाद उन्होंने हार मान ली. इसको समझाकर कुछ हो नहीं रहा. Because I always had this one point. मैं उन्हें कहता था देखो नौकरी मिल जाएगी. ठीक है. I am working right now. I worked at a firm for 6 months. Then I left it. They were like, what have you done? I'm like, नहीं, just let me do what I want to do. If it doesn't work out, then job मिल जाएगा. I know. I have that much confidence कि अगर मुझे job चाहिए मिल जाएगा. But अगर मुझे मेरा सपना चाहिए और मुझे वो लग रहा है कि अभी complete हो सकता है और मैं अभी नहीं किया ना, ये नहीं मिलेगा मुझे. So whenever I have seen ना कि oh my goal is right there, I've been like I'll leave this. I know I will get back to this somehow because this is not the tough part for me. Like in my head I've always convinced myself ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है, वो पाना मेरे लिए मुश्किल है. So I've always gone like जहाँ मौका मिला just grab it. So parents मान जाते like their main concern is always कि बेटा तू अपनी life में कैसे survive करेगा. जिस दिन वो लोग वो देख लेते ना कि तू survive कर पा रहा है, उस दिन they're like बेटा ठीक है तुम वो करो जो तुम्हें करना है. There always their fear has been कि can you survive in with the thing that you love. Exactly this. So when I told my parents about that leaving the job, their only question was, it's okay, do what you want, but how will you survive? So I took around 11 months to convince myself first, then convince them that I am able to leave the job. So even I was not sure. When I told them that, they gave me a set of 5 to 6 questions, I was like, I don't have any answer. So it took me 11 months to get the answers to those 5 to 6 questions, which weren't answers for them, for it was for me. Basically or indirectly, they were preparing me to do what I want. And once I was ready with all of that, they never asked me. I just told them that I'm good, I guess I can take this forward. And they said like, okay, go ahead. So how do you, अगर कोई नया एस्पिरेंट देख रहा है तो what do you suggest कि क्या करना चाहिए उसको? Well, I'll suggest झटका मत दो, फिर हमको बता दो कि like I'm planning to leave the job, this is all my preparation. जब हम कोई एक नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं, हम एक बड़ी सी पीपीटी बनाकर अपने बॉस के पास जाते हैं. Why not to prepare a small thing for them? Go and have a conversation. Tell them. They'll ask you questions. They will definitely ask you questions. And if you get right answers to them, it's not only for them, it's for both of you. आपके पास भी और उनके पास. If you give them the right answers, they are convinced, you are convinced. And tell them slowly because they will be convinced. They'll always look for your happiness. And वो रोकते आपको इसलिए because they have seen the harder part of life and they don't want you to see it. I think for me it's like आज की जनरेशन का मेजर इशू ये है कि हमें बगावत करनी है. मतलब कोई भी फैक्ट मिल गया ना बस बगावत करनी है कि नहीं माय पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मी. नो योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड यू द बेस्ट. द प्रॉब्लम इज दैट दे हैव सीन थिंग्स दैट यू हैव नॉट येट व्हिच इज व्हाई दे आर जस्ट मोर प्रोटेक्टिव अबाउट यू. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये रहा आपका सपना और ये रहे आपके पेरेंट्स के स्ट्रेस एंड एवरीथिंग एंड दिस इज द मिडिल रोड जहाँ पर ये भी खुश है और ये भी खुश है. एंड दिस इज ऑलवेज द टफेस्ट पार्ट टू टेक. बट अगर तुम इस पे चल लिए ना भाई तुम जिंदगी में उखाड़ लोगे कुछ. लास्ट क्वेश्चन. ये इसी बात पे ये मेरा खत्म हो गया. So cheers. This is iced tea, guys. यारा का पता नहीं है. So यारा. ये मत बोला कर. What are the pros and cons of being a poet or a storyteller right now? I think everything that we say as a pro can also become a con. Very honest. Like अगर मैं बोलूँ freedom है, वो con भी है मेरा कि freedom इतना है कि फिर मैं 2-3 दिन बर्बाद कर सकता हूँ कि नहीं आज लिखने का मन नहीं कर रहा, आज आलस आ गया, आज वो दोस्त ने बुला लिया. So वो हमेशा याद रखना कि यार if you've got the freedom, use it right. क्योंकि अगर तुमने इसको लाइटली ले लिया ना तो फ्रीडम छीन भी ली जा सकती है आपसे. बेसिकली परसेप्शन आप कैसे किसी भी एक चीज को लेते हो. गुड पार्ट इज यू आर फ्री, यू एबल टू डू व्हाट यू वांट, यू कैन वर्क व्हेनेवर यू वांट, यू कैन वर्क व्हेनेवर यू डोंट वांट, you feel things deeply,
you associate with people. There are people who come to watch you. Cons. There are people who come to watch you have expectations. You feel things so deeply that at times you forget what you actually want to feel or what you actually want to live. You're so free that you believe you can do it anytime and you don't do it. So you have to be your own boss, your own employee. और about work, जो नहीं काम कर रहे हो मत करो, पैसे ही नहीं आएंगे. वो आर्ट फॉर्म खुद ही आपको एक बहुत अच्छा कहावत है, बोलते हैं स्टेज सिखा देगा. हाँ भाई बहुत सिंपल है. स्टेज की इज्जत दोगे ना तो स्टेज तुम्हें इज्जत देगा. सिंपल एंड ऑनेस्टी. एक क्वेश्चन में छोटा सा दिया था. वन स्मॉल क्वेश्चन. हाउ इज द कम्युनिटी राइट नाउ? क्या वो कम्युनिटी हेल्पिंग है पोएट स्टोरी टेलर्स की? कैन एनीवन कैन गेट टू यू एंड लाइक आस्क फॉर टिप्स एंड व्हाट आर द टिप्स? Yes, everyone. I guess that is our responsibility as the member of this community. What is a community? It's basically few people coming together and sharing a common idea and working on it. So when I stepped in, I had at least 10 people helping me with open mics, with new content. So और मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि बेटा तुमने किसी एक जगह से कुछ लिया है ना, तो अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम जितना लिया उतना लौटा दो. So it is my responsibility right now. If someone comes, walks up to me, is like this, that or that, जहाँ तक मुझसे help होगी, I'll definitely help that person. I think community is very important क्योंकि तो this is a fact. जब मैंने साइकिल लिखी थी तो वो इतनी रॉ थी that I had 3 people helping me out with it. तो there was मोहम्मद सादरीवाला, there was नवलदीप and there was देवरूप. इन तीनों ने मेरी मदद की थी वो पीस को थोड़ा और फाइनर बनाने के लिए. नदीम हेल्प्ड मी विद द ट्रांसलेशंस, जो इंग्लिश के सबटाइटल्स आप देखते हो वहां पर. सो आई थिंक अगर वो लोग नहीं होते तो शायद साइकिल आप पे इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ती. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ट्रस्टवर्दी सर्कल जहाँ पे आप अपना काम डालकर छोड़ दो और आप ऐसे छोड़ो कि फिर वो लोग उसमें जो भी नुक्स निकाले ना, यू आर रेडी टू एटलीस्ट एब्जॉर्ब इट. आई एम नॉट सेइंग दैट वो लोग ने जो बोला वही चेंज कर दिया, नहीं, बट यू एब्जॉर्ब देयर क्रिटिसिज्म. तो लाइक हाँ ठीक है, आपका भी एक वैल्यू होता है, सेट्स ऑफ वैल्यू कि हाँ ठीक है, व्हाट ही सेड इज राइट फॉर मी एंड रॉन्ग फॉर मी. इट इज राइट फॉर हिम, बट अगर मैं इम्बाइब कर लूंगा तो शायद गलत हो जाएगा. तो आई थिंक दैट वे अ कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस वाज द एपिसोड. और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे तो कमेंट्स में पूछ लो, हम उनको कॉल करके पूछ के और पेश करवा दो यार. हाँ इतने प्लीज. एंड गाइस प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन बता दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी नया वीडियो अपलोड होता है. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Yes, also follow them on Instagram, social media, other platforms, and follow us amandeep.khayal, Instagram, Facebook, Twitter, और जो भी होता है. याबूट वाला इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड अंश को भी फॉलो कीजिए. रियली नाइस. अरे अंश मत फॉलो कीजिए. मत फॉलो कीजिए. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. लव यू. कट. डज इट हैपन विद यू? लाइक मेरे साथ ये चीज होती है कि आई कांट टॉलरेट माय वॉइस ऑन माइक. नहीं आई कैन लिसन टू माय वॉइस. आई गो लाइक किसकी आवाज है, बंद करो इसको. पता है क्या होता है रेडियो में, जब आप लाइव जाते हो ना तो आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है. Okay. तो मैं कभी कभी अपने कुछ चंक्स उठा के आई यूज्ड टू लिसन लाइक वाह वाह, क्या बात कर दी यार ये. ओह माय गॉड करिश्मा, योर वॉइस. नहीं, so you have to be a little self obsessive if you want to become an RJ. How to passion.